Sumit Garg to speak on CASA, about its objective, about its achievements. Sumit ji, please speak about CASA. 2 words. Thank you, Ujjwal ji. And first of all, I would like to welcome our guest speaker, CA Pankaj Chawla ji, for joining and planning and designing on this MSME course, where we are going to learn different things for small, medium entities, particularly helping all those organizations, CA firms. So definitely it will Thank you, be a Sumit ji. good learning schedule in next 4 days. As far as CASA is concerned, Ujjwal bhai rightly pointed out, we are going continuously organizing series of activities for the benefit of the members at large. And हमारी कोशिश भी रहती है कि जिस नए टॉपिक पर हम प्लान कर सकें उस पर प्लान करें और अपने इस लर्निंग शेड्यूल को आगे बढ़ाएं. जैसा कि ऑलरेडी लास्ट 1 ईयर से जब से कोविड आया है हम लोग वर्चुअली वेबिनार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कई अलग डिफरेंट टॉपिक पर विद द हेल्प ऑफ आवर कोर मेंबर सचिन सिन्हा जी कई ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स भी डिजाइन करे जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे. और कोशिश है ये कोर्स भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक वैल्यू एडिशन देकर जाएगा, जिसमें कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा: इंटरनेशनल टैक्सेशन, एनपीओ, जीएसटी इंडस्ट्री वाइज एंड दिस एमएसएमई, कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस पर. तो ऐसे इश्यूज जहाँ पर हमें एक रियली कुछ हमारी प्रैक्टिस में एक नए जिस पर्टिकुलर एरिया में हम वर्क करना चाहते हैं, वी कैन ग्रूम अवर सेल्फ, वी कैन डेवलप अवर स्किल एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प अवर फैकल्टीज एज वेल. लाइक सचिन जी इज एक्सपर्ट ऑन इनकम टैक्स, जो टीडीएस और इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस पर बोलते हैं. और कहीं ना कहीं इनके माध्यम से हमारे मेंबर्स को जिसने भी कभी भी कॉल किया या क्वेरी भेजी तो रिस्पॉन्ड मिला. उसी वे में हम लोग जो टीम है हमारी, सभी लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबके कंट्रीब्यूशन से इस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द प्रोफेशनल्स. Definitely your support and cooperation always required to fulfill the dream of this platform. Now I request Ujjwal to take further. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Amit Bansal ji to speak about the subject, today's subject. Amit Amit Bansal ji, are ji. you there? I think Amit ji is not there. So I request Sachin Sinha ji, our co-member, to give a welcome brief about the topic and program. Thank you, Sumit ji, for giving me the opportunity to speak few words in front of you and my dear friend Pankaj. In fact, this topic, I feel that this is very important topic nowadays because every company which start as a startup wants to become an MNC. So this is basically the Pankaj will guide the journey from MSME to MNC. And when we were discussing with Pankaj about the topic, I was very excited to understand how this can be happen, because every client, when we guide our client in this manner, of course, our professional efficiency will definitely increase, and we will reach to the next level. And not only we will count it as the filing of return and the guiding about the taxation, we will count it as guiding about the business advisor. So I think this is the idea when we planned this session. And of course, Pankaj has given immense contribution about all the topics. And the speakers for these 3 days are all excellent speakers, and they have great experience in this line. So this is, with this, I'd like to give thank you to Pankaj ji, Sumit ji, and Ujjwal ji for organizing such a wonderful webinar. So over to Sumit ji. Thank you, Ujjwal? Sachin ji. Just a minute. Ujjwal, can you proceed? Thank you, Sachin sir. Now I would like to introduce our guest speaker, Pankaj Chawla ji. He is a founder and CEO of MSME Strategy. He is a strategic business partner and an entrepreneur.
He is a qualified chartered accountant with more than 20 years of experience in various fields like senior management partnering, strategy formulation, strategic cost management, financial planning, etc. He is a Lean 1B and 1C certified from Cardiff University and Lean Six Sigma methodology certified. He is also certified for situational leadership second. So I would like Pankaj Chamla ji, our guest speaker, to carry on today's session. Thank Over to you. you, sir. Thank you, Ujjwal ji. First of all, I'd like to thank Sumit ji and Sachin ji for inviting me to the session. I think this has been a great honor to discuss the topic of the day, which is MSMEs, how can they turn to MNCs. Important is how we all chartered accountant brothers, can benefit from this opportunity which has come to us. What is the journey of an organization? How can we add value to the organization? Primarily with the thought that we always will grow as the organizations will grow. MSME Pankaj, badhega. your Sorry. voice is a little bit low. Can you hear me now? Yeah, Any yeah, better? perfect. Now perfect. Okay, fine. Am I being given right as co-host? Can I share the screen as well? Yes, you can share the screen. Okay. So I think the idea is to really understand how we as chartered accountants can add value to MSMEs, so that as the MSMEs grow, we also grow. And what is the underlying opportunity that is there for us as professionals to take that journey forward and onward with the clients. So that is the objective. I will try and conversate in a mix of Hindi and English. Hope that's fine, because that will pass on the message right. So मैं पंकज चावला, हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट किया था एक आइडेंटिफाई करके कि MSMEs जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ग्रो करने और compete करने की MNCs से, और वो फॉर द लॉन्ग पार्ट ऑफ देयर जर्नी वो MSMEs ही रह जाते हैं. अगर हम उनको ढंग से बहुत अच्छे तरीके से एडवाइज करें, उनके साथ बिजनेस में पार्टनर करें, तो हम उस MSMEs को MNC बना सकते हैं. 2-3 बहुत की ग्राउंड रूल्स हैं या एफिशिएंसीज हैं हमारे पास एज प्रोफेशनल, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर क्वालिफिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड, जो हमें एक बेसिक प्लेटफॉर्म फाउंडेशन देता है जिससे हम उसको हेल्प कर सकते हैं. सेकेंड इज आवर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमें हेल्प करता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस समझने के लिए, लर्न करने के लिए, और फिर वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यूटिलाइज और इम्प्लीमेंट कर पाए इन अदर क्लाइंट्स ऑफ अस, जिस इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग जो है क्लाइंट्स को ग्रो करा सकते हैं. बिकॉज हम बिजनेस भी समझते हैं, हम फाइनेंस भी समझते हैं, हम लीगल प्रोविजन भी समझते हैं, हम इंटरनेशनल टैक्सेशन भी समझते हैं. सो दैट गिव्स अस दैट एज. बट व्हाट हैपेंस इज, ये कंटेंट है ऑब्वियसली ऑफ एंटरप्रेन्योरिंग एसेंशियल्स. हम क्या करने वाले हैं, वेयर वी आर, डेफिनेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, आई विल कम टू दैट. बट इंपॉर्टेंट इज वेयर आर वी टुडे, राइट. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा देखें कि हमारे पास एक ग्रीन फील्ड है, हम उस ग्रीन फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ग्रीन फील्ड के सरफेस पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो सॉइल में से वाटर माइन कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो मिनरल्स एंड ओर्स माइन कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो गोल्ड माइन कर रहे होंगे. बट गोल्ड माइनिंग जो है वो सबसे लास्ट में आता है. उसके लिए ये जो पूरी मेहनत है, ये करने के लिए जनरली यहाँ पे लोग कम होते जाते हैं. सिमिलरली फॉर MSMEs ऑल्सो, MSMEs भी इसी जर्नी से जाते हैं जहां पे वो यहाँ पर, कैन यू सी द पॉइंटर सुमित जी? हाँ, ठीक है, ओके. जो MSMEs भी हैं वो भी यहाँ ग्रीन फील्ड पे होते हैं काम करते हुए. अगर उनको गाइडेंस मिलती रहती है तो वो वाटर माइन करते हैं, वो सॉइल माइन करते हैं, फिर वो उसके बाद मे बी ओर्स पे जाते हैं, मिनरल्स पे जाते हैं, और वो गोल्ड माइन करते हैं. तो उस MSME की जर्नी भी ऐसी होती है कि ऊपर ज्यादा लोग होते हैं और नीचे कम लोग होते हैं. इफेक्टिवली ये पिरामिड जो है रिवर्स पिरामिड बन जाता है.
जब ये रिवर्स पिरामिड बन जाता है तो यहाँ जो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, बट यहाँ लोग कम होते हैं उन लोगों को सर्विस करने के लिए, प्रोफेशनल्स लाइक अस। और कंपनीज भी यहाँ कम होती हैं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टॉयल टू रीच देयर। तो अगर हम वो प्रोफेशनल्स अपनी नॉलेज से ये पिरामिड को रिवर्स करके सीधा पिरामिड बना पाए जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैटेगरी में हों, वो ऑब्जेक्टिव है मेरे सेशन का, वो ऑब्जेक्टिव है जहां पे हम लोग एज प्रोफेशनल्स वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि हम लोग अगर ये पिरामिड रिवर्स करने में इस सेशन के बाद अगर 10% भी सक्सेसफुल हो गए तो आई थिंक इट इज अ विन फॉर द प्रोफेशन। वो मेरा पर्पस है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? मैं दो तरीके के ब्रॉड कैटेगरीज बनाता हूं, और ये सेशन दोनों ही कैटेगरीज के लिए है। ऑलरेडी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई हैं जो एमएसएमईज को सर्विस करते हैं, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई हैं जो शायद एमएसएमईज को सर्विस नहीं करते अभी बिकॉज ऑफ द स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर इन। सो मैं इस कोर्स के माध्यम से इस दोनों ऑडियंसेस को टारगेट करने की कोशिश करूंगा और हेल्प करूंगा कि हम इस पिरामिड को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब समझते हैं कि एमएसएमईज क्या हैं। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन, दे आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिनकी इंडिया में उसकी डेफिनेशन बेसिस द एनुअल टर्नओवर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी से डिफाइन करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एडमिनिस्टर करता है, जिसने रूल्स रेगुलेशंस और लॉज बनाए हुए हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए, और डेफिनेशन बनाई हुई है कि हाउ डू यू डिफाइन दैट। इन जो माइक्रो है उनकी डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। स्मॉल इज इजी तरीका into 10, which is investment of 10 crores, turnover of 50 crores. Medium is into 5, which is investment of 50 crores and turnover of 250 crores. So इस तरीके से माइक्रो स्मॉल और मीडियम को डिफाइन करते हैं बाय द रूल्स ऑफ द एमएसएमई मिनिस्ट्री और बाय द लॉ विच इज द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है कि अभी तक ये टर्नओवर लिमिट्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए एप्लीकेबल थी। अब लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के हिसाब से ये रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो गई है। दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स विच आर देयर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। अब इट इज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज लोग जो हैं वो खुश हैं कि रिटेलर्स भी ऐड हो गए हैं, रिटेलर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम फ्लिप साइड इज कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है। एज अ प्रोफेशनल हम इसको कैसे समझते हैं? एज अ प्रोफेशनल हम इसको ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 3 लाख करोड़ का बेनिफिट देंगे टू MSMEs in manufacturing and services sector. Now if that includes retail and wholesale traders also, वो 3 लाख करोड़ जो है डिवाइड हो जाएगा। और ट्रेडर्स ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका नेगेटिव आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और बेनिफिट डेफिनेटली जाएगा ट्रेडर्स को। बट इट हैज बीन सीन इन द न्यूज, बहुत सारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये पॉइंट रेज किया है कि while it is important to include traders into this, but ये शायद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ उस लेवल का जस्टिस नहीं कर पाए जिस लेवल के लिए एमएसएमईज बनाए गए थे। सो अपॉर्चुनिटी फॉर अस हु आर serving and servicing retail and wholesale trader companies, but then yes, important at the same time for us who are servicing manufacturing and service industries, जहां पे हम उनको जो भी एमएसएमई स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें, सो दैट वो उसका रियल बेनिफिट, क्योंकि आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा हिट हुआ है विद कोविड, सो वो बेनिफिट जो है वो टाइमली और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ले सकें। नाउ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है जिसपे हम जाके
फ्री ऑफ कॉस्ट पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 3 तरह से डिवाइडेड है, जो नए रजिस्ट्रेशन है जिनका आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, या एक पुराना रजिस्ट्रेशन है जो जहाँ पे उद्योग आधार बनता था उससे अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो उस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पैन डिटेल्स को वैलिडेट करके, वो पैन का डिटेल वेरिफिकेशन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो उसका वेरिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट से भी होता है। वो वेरिफिकेशन के बाद 2 से 3 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वैलिडेशन के सिंपल प्रोसेसेस हैं, आधार से लिंक करेंगे तो फाइनल ओटीपी आएगा सबमिट करने के लिए, और 2-3 दिन में सर्टिफिकेट आ जाएगा। बहुत पेपरलेस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोसीजर है। इसके बाद जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको अपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैटेगरी में रजिस्टर करना है और पुराना यूएएम नंबर डालना है, विच वाज अर्लियर उद्योग आधार, वो नंबर डालना है, और वो उस नंबर के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन डिटेल्स पहले दी गई थी, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और अपना ओटीपी डाल के रजिस्ट्रेशन कैन बी सबमिटेड अगेन 2 से 3 दिन में उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड की फेयर रिक्वायरमेंट है। प्रोप्राइटरशिप के लिए बिल्कुल सिंपल है। पार्टनरशिप के लिए मैनेजिंग पार्टनर का आधार चाहिए। एचयूएफ के लिए कर्ता का आधार चाहिए। कंपनी एलएलपी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आधार चाहिए, एंड यू कैन गेट द रजिस्ट्रेशन डन। सो दिस इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन। अब बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रेशन पे कोई सवाल है किसी का, कुछ बात करना चाहते हैं हम? नहीं, ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि एमएसएमई जो रजिस्टर्ड हैं उसको बैंक लोन चीपर रेट पे देता है, मे बी 1 से 1.5% लोअर देन द रेगुलर लोन्स। वो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो एमएसएमईज एडवांटेज लेना चाहें वो जरूर ले सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ईज हो जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन से, जो कि गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है, उसमें आप टेंडर्स इजीली फाइल कर सकते हैं। दे गिव यू प्रेफरेंस। 50% सब्सिडी मिलती है पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, और जो एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं ISO 9000, ISO 14001, HACCP रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेशन के लिए, उसमें रिलैक्सेशन और एक्सपेंसेस मिल जाते हैं आपको, और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, लोन्स हैं, वो आप बेनिफिट ले सकते हैं आफ्टर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड। देयर इज बाय द MSME Act certain items which are limited to be made by and procured by MSMEs only। वो MSME Act में डिटेल्स में दिया हुआ है कि हम जो है क्या क्या आइटम्स ले सकते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू MSMEs है। इसके बाद MSME एक्ट के की प्रोविजंस के बारे में बात करना चाहूँगा। नॉट ऑल, ये की प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हमें MSMEs जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये बताना चाहिए कि MSMEs के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पैसा कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, कोई अमाउंट की रिकवरी करनी है, तो हम कैसे विद नो और मिनिमल लिटिगेशन इस MSMEs इन अपनी MSMEs को बेनिफिट दिला सकते हैं। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने यहाँ स्क्रीन पे डाले हैं। फर्स्ट सेक्शन इज लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट। अगर MSME ने किसी भी बायर को माल दे दिया है या सर्विस दे दी है, it is the liability of the buyer, the onus is on buyer to make the payment within the specified time। वो specified time 45 days का है, और 45 days from the date of supply of goods or services if the buyer does not dispute। अगर buyer dispute करता है तो dispute rectification के बाद उसको पेमेंट करनी है within 45 days। नहीं करता है then we have got the clause for interest। इंटरेस्ट पेबल होता है, इंटरेस्ट रेट का भी प्रोविजन हार्श है, विच सेज कि 3 times बैंक का इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डेट फ्रॉम विच डेट इज 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द डे ऑन विच द लायबिलिटी अराइजेस, उसके बाद से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू के लिए प्रोविजंस है कि आपको अमाउंट ड्यू की रिकवरी के लिए आप MSME फैसिलिटेशन काउंसिल में जा सकते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप वही है, क्योंकि MSMEs का पर्पस जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि जितने भी MSMEs हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी लिटिगेशन और कोर्ट्स में जाएं, तो ये फैसिलिटेशन काउंसिल है विच इज मोर लाइक एन आर्बिट्रेशन। आप वहां बैठ के अपने केसेस को, अपने इश्यूज को सुलझा सकते हैं।
एमिकेबल सेटलमेंट कर सकते हैं, और आप जो है उसमें इंटरेस्ट जो भी आपका एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट भी वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। और एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो आपको रिकवरी करवा के देता है विद वॉट एवर अरेंजमेंट्स एंड टर्म्स दैट यू हैव ऑलरेडी अग्रीड विद द बायर। इसके बाद इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आती हैं कि जो बायर्स हैं उनको अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स में मेंशन करना होता है कि व्हाट इज द अनपेड अमाउंट विद इंटरेस्ट इन देयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो आप रेगुलेटरी फाइलिंग में डालते हैं कि मैंने एमएसएमई से एक्स रुपीज एक्स करोड़ का माल लिया था, सर्विस ली थी, जिसका डेट इस दिन ड्यू होता है, और दिस इज माय अनपेड अमाउंट विद वॉट एवर इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। वो डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है। एमएसएमई देयर इज अ रेज ऑफ हैंड, मैं स्लाइड फिनिश करके लेता हूँ। नवीन जी प्लीज 1 मिनट दे दीजिए। और सेक्शन 23 बोलता है जो भी इंटरेस्ट एमएसएमई को पे करना है बायर ने, वो इंटरेस्ट को डिडक्शन नहीं मिलेगा इन द इनकम टैक्स एक्ट एज एन एक्सपेंस। सो वो इंटरेस्ट का अमाउंट डिसला हो जाएगा। सेक्शन 24 विच इज अ ब्यूटीफुल सेक्शन इन द एमएसएमई एक्ट, दिस सेज कि एमएसएमई एक्ट के प्रोविजंस विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ टू एनी अदर लॉ इन फोर्स। इस सेक्शन में, इस एक्ट में जो भी लिखा है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा टू अदर लॉज। सो दिस लॉ विल प्रिवेल ओवर एनी अदर लॉ which is in force on as on date. This is on the act. Question, Naveen ji, if you can talk. Sumit ji, can you unmute Naveen ji for the question? It will be better अगर नवीन जी क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दें, so this will be better. I think उन्होंने क्वेश्चन डाला भी है, पंकज जी। He has asked is उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन is equal to MSME रजिस्ट्रेशन? आधार रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन is equal to MSME रजिस्ट्रेशन? टिल 31 दिसंबर यस। पहले इसकी डेट 31 मार्च थी, सबको रिन्यू कराना था, अभी वो डेट एक्सटेंड हो गई है, बट आइडिया इज टू मूव टू उद्यम रजिस्ट्रेशन। सो आप जितना जल्दी करा लें उतना बेहतर है। राइट। And how we can verify registration of party is correct and valid? Registration of parties is correct and valid. Generally registration certificates आप पार्टी से मांग सकते हैं। There are practices where parties generally write on their bills that they are MSME verified or MSME registered, उद्योग और उद्यम as the case may be, और उसमें वो इनवॉइस पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, which helps MNCs or big companies who are buyers of these products to put that in their annual statement. So ये जो सेलर है उसके हित में है कि वो ये चीज मेंशन करे इनवॉइस पे, ताकि उसकी रिकवरी 45 डेज के अंदर हो, नहीं हो तो उसको इंटरेस्ट मिले, और जो सामने बायर है वो ऑब्लिगेटेड हो उसको अपनी एनुअल स्टेटमेंट से मेंशन करने के लिए। एंड रवि सर का एक क्वेश्चन है, सर फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन एज एमएसएमई फॉर डिस्क्लोजर इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, what he want to ask? हाँ, MSME registration is required. अगर क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन पे तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। Okay. So we can move. रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, do we need to renew it every year? It is one time registration. Every year you will get an email from MSME ministry saying your annual update is due, जिसमें अपना टर्नओवर और बाकी डिटेल्स डालते हैं इन्वेस्टमेंट का, जिसके बेसिस पे आपको क्लासिफाई करते हैं वेदर यू आर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। एंड few questions are also there. I think first we should cover the topic in entire, so that later on we can in the last 15 minutes we will take up all the queries by unmuting everyone, so it will be better. Fine, that is fine, we can do that way. Right, na? That is fine. That is fine, Pankaj ji, है ना? Absolutely, absolutely. Sure. क्योंकि वो हैंड रेज हुआ था। Your topic in the next 1 hour. So in the last 15 minutes we will unmute everyone, so they can ask query by themselves. Definitely, we can do that. Just because it was appearing on my screen that people has raised hands, so I thought I'll answer as we go. But that's fine. No problem, sir. Okay. So we'll move forward. This is about the legal position.
Now, as we move forward, what are the differentiators between the MSMEs and MNCs is an important thing to understand. Because अगर हम ये differentiator समझ जाएंगे तो हम इस capacity में होंगे अपने clients को guide कर सकें to whatever extent we can and they can adopt these differentiators which will help them become or work towards and grow towards the MNCs. So सबसे बड़ा differentiator जो है वो है technology, the use of technology which is at the center of any organization which is growing. और वो टेक्नोलॉजी के साथ उस टेक्नोलॉजी की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इन व्हाट टाइमिंग, at what time of the organization, stage of the organization you try and adopt the technology. अब टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन वेरी करता है, आप किस स्टेज पे हैं, आपका एपेटाइट कितना है. टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कुड स्टार्ट विद एज स्मॉल एज एन एक्सेल मैक्रो टू एज हाई एज AI ML एंड रोबोटिक्स का एप्लीकेशन. डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज एंड स्केल पे हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को जरूर अडॉप्ट करें और अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो डेटा का काम है, जो डेटा का काम है जिससे आप डिसीजन लेंगे, वो वाला काम टेक्नोलॉजी आपको करके दे एंड यू गेट इनटू अ रियल वैल्यू ऐड. कि उस टेक्नोलॉजी से जो डेटा आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी से जो आउटपुट निकल के आ रहा है, उसको कैसे एनालाइज करना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में, वो उस पर हम फोकस करें. सो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है. इसके बाद लिंक टू दैट इज दैट बिग, as the organizations grow big, they tend to realize the losses that they make and then they try to fix that leakage. We at the small stage also can fix those leakages right there and then, which is what will make us return on investment focused. हम अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे और बार बार उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम उसको जरूर बढ़ा पाएंगे एज एन एंटिटी. अदरवाइज वो कहीं ना कहीं लीकेजेस स्ट्रिप आउट होती रहेंगी, विच विल लीड टू नॉट इन्वेस्टिंग आवर मनी, टाइम, एफर्ट इन एट द राइट प्लेस. सो वो ROI फोकस्ड होना बहुत जरूरी है. और लीकेजेस को फिक्स करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपको बिजनेस को किस स्ट्रेटजी से बनाना है, आपका बिजनेस का विजन क्या है, वेयर डू यू वांट टू सी द बिजनेस 5 years डाउन द लाइन. कंपटीशन क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हो रही हैं, मेरे पास आज जो प्रोडक्ट है क्या वो प्रोडक्ट आज से 3 साल 5 साल बाद वायबल भी रहेगा, उसके लिए मुझे उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है. दैट स्ट्रेटजी, 360-degree strategic analysis is very important for your business. That strategy then should translate into a robust business plan. उसके नीचे steps बनने चाहिए कि उस strategy को लेके मेरे को business में plan कैसे करना है, be it my sales, marketing, operations, customer service, etc. etc. मुझे हर एक का business plan होना चाहिए, मेरा हर function कैसे काम करेगा, कैसे एक दूसरे से link हो रहा है, which will then turn on to a financial plan, जो हम अपने day 3 में cover करने वाले हैं डिटेल में, business plan, financial plan, which will then turn into a financial plan कि उस strategic vision का, उस business plan के steps का financial implication क्या होने वाला है and how should we work on that. उसके through we will come to know कि हमारी KPIs क्या है, which is key performance indicators. How we will come to know कि मेरा business वैसे ही चल रहा है जैसे मैं उसे चलाना चाहता हूँ. उस business के critical indicators क्या हैं, कि जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि क्रिटिकल इंडिकेटर्स क्या थे, आपका SpO2 लेवल ठीक होना चाहिए, आपका पल्स ठीक होना चाहिए, आपका फीवर क्या है वो मॉनिटर करना चाहिए. वैसे ही वो क्रिटिकल पैरामीटर्स थे, वैसे ही बिजनेस के भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं. वो पैरामीटर्स हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हर बिजनेस के लिए अलग हो सकते हैं, हर इंडस्ट्री के लिए अलग हो सकते हैं. सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस के लिए अलग हो सकते हैं. सो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करके क्लाइंट्स को एडवाइस करना चाहिए कि KPI फॉर्मेशन बहुत जरूरी है. KPI फॉर्मेशन के बाद हमें डेटा आना जरूरी है, विच इज द सेंटर विच आई स्पोक अबाउट टेक्नोलॉजी, और उसका इफेक्टिव यूज कैसे करेंगे. सो एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट KPI है कि मेरा कस्टमर एक्विजिशन कितना फास्ट हो रहा है. दूसरा KPI है उस कस्टमर को मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है. बट KPI तो समझ लिया, बट उस KPI की मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसके लिए मेरे पास डेटा आएगा कि मैंने आज 10 कस्टमर एक्वायर करें, कल 50 कस्टमर एक्वायर करें, फिर 100 कस्टमर एक्वायर करें, विच विल शो मी कि मेरा किस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है. और अगर रिवर्स जा रहा है तो मुझे बताएगा कि मेरे को डिसीजन डिफरेंटली लेना है. सो विच विल देन लीड टू डेटा एनालिटिक्स सो दैट आई कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन.
मुझे हर रोज हर हफ्ते पता लगता रहेगा कि मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पिछले दिन कैसी थी या पिछले हफ्ते कैसी थी, तो मैं उसको हेल्प कर पाऊंगा, उसको टाइमली डिसीजन लेके उसको सॉल्व करने की विद माय मैनेजमेंट टीम, जो मुझे हेल्प करेगी हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट में अपने बिजनेस की डिसीजन लेने में और उसको कोर्स करेक्ट करने में। कि अगर मैंने कुछ पिछले एक हफ्ते, एक महीने या 15 दिन में कुछ गलत किया है या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करी है, ऐसे टैक्टिक्स यूज करे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, विच इज नॉट वर्किंग इन माई फेवर बिकॉज मार्केट बदल गई, कस्टमर बिहेवियर बदल गया, तो आई कैन कोर्स करेक्ट दैट। जब मैं उस कोर्स करेक्शन को देखता हूँ तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा विच इज ऑन कैश फ्लो। सो दोस्तों, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसमें ऑपरेशंस और फाइनेंस के पैरामीटर्स दोनों साथ साथ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों को रिलेट कर पाएं। सो अगर मैं कोर्स करेक्ट कर रहा हूँ तो हमें पता है कि एज प्रोफेशनल्स कि ये जो बिजनेस रन कर रहा है, कोई भी बिजनेस बिना कैश के नहीं हो सकता। सो कैश फ्लो की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश इनफ्लो कितना आ रहा है और कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। आई माइट हैव टेकन अ डिसीजन टू डू ओनली कैश आउटफ्लो फॉर द टाइमिंग विच इज ओके, विच इज बिकॉज मैंने एक डिसीजन लिया कि आई एम ओके टू burn cash for next 12 months to acquire X number of customers, and month 13th onwards is when I start to see the revenue and profits coming in. That is okay, but उसको monitor करना बहुत जरूरी है कि मैं उस cash flow outflow के beyond target तो नहीं जा रहा, beyond budget तो नहीं जा रहा, या मैं उसके अंदर हूँ। सो मॉनिटरिंग हेल्प करेगी हमें राइट डिसीजन लेने में। या मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कैश बर्न तो करना है, बट मुझे प्रोडक्ट बनाने में इतना कैश बर्न करना है, मार्केटिंग में इतना करना है, एनहेंसमेंट में इतना करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना करना है। सो मुझे उसका मिक्स भी देखना है, क्या वो मिक्स सही है, जो मैंने इंटेंड किया था वो मिक्स डिफरेंट हो रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है कि मैं अगर मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ एमएसएमई, और मैं चाहता हूँ ग्रो करना, तो मुझे पता होना चाहिए कि वेयर एम आई रॉन्ग एंड वेयर इज इट दैट लाइज माई स्ट्रेंथ, जिसके लिए हम एक एनालिसिस करते हैं विच इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ इज मेरे बिजनेस की, मेरी मैनेजमेंट टीम की क्या स्ट्रेंथ है, मेरे बिजनेस मैनेजमेंट टीम मार्केट की से रिलेशन में क्या वीकनेस है जिससे मुझे काम करना चाहिए, जो मेरी एक यूनिक पोजीशन है मार्केट में, उसके लिए मेरा अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द मार्केट and make a mark. And at the same point in time, I should also not be overconfident. I should also look at what are threats to my existence. ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं तो आंखें बंद करके अपना बिजनेस ग्रो करता जा रहा हूँ, बट देर इज अ थ्रेट टू माई बिजनेस कि जिस एज एन एग्जाम्पल जिस टेक्नोलॉजी पे मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी आज से 10 महीने 15 महीने बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी। सो जो मेरी ग्रोथ है दैट इज नॉट लॉन्ग लिव्ड, बिकॉज मैंने उसको 360 डिग्री एनालिसिस नहीं किया ये देखने के लिए कि एक थ्रेट भी आ रहा है कि टेक्नोलॉजी आउटडेट हो रही है, या मैं ग्रो कर रहा हूँ लेट्स से 10% के रेट पे, बट एक कंपटीशन आ रहा है जो 100, 200, 300% के रेट पे ग्रो कर रहा है। सो आज से 10 महीने बाद वो मेरे से इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। सो मेरे को आज ही उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। सो रेगुलर स्वॉट एनालिसिस इंपॉर्टेंट, उसके साथ वर्ड है रेगुलर स्वॉट एनालिसिस, मुझे वो करना बहुत जरूरी है सो दैट मैं अपने बिजनेस के लिए राइट डिसीजन ले सकूं और अपना डिफरेंशिएटर बना सकूं मार्केट में। और मे बी फॉर सेक ऑफ रिपीटिशन, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स केपेबल हैं ये चीज क्लाइंट्स के साथ कराने के लिए, ये चीज क्लाइंट को हेल्प करने के लिए, बिकॉज हमें बिजनेस मार्केट सब समझ में आता है, हमें पता है कि कौन सा क्लाइंट किस मार्केट में बैठे क्या डिसीजन ले रहा है। सो वी कैन गाइड देम मच बेटर देन व्हाट वी डू विदाउट दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत सारी एमएनसीज, लार्ज कॉर्पोरेशंस और बड़ी कंपनीज में भी, बड़ी कंपनी की डेफिनेशन हर एक के लिए डिफरेंट होती है। कुछ बोलते हैं कि 200 करोड़ 500 करोड़ से ऊपर कंपनी बड़ी है, किसी के लिए 10,000 करोड़ रेवेन्यू से ऊपर कंपनी बड़ी होती है। सो एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सीन दैट दोज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। They hire people to fix the processes for them, build the processes for them, make them robust, and then hire people who run those processes. जिससे वो क्या करते हैं, वो एक बिजनेस को इंजन की तरह लेते हैं। मैंने इंजन को सेट कर दिया, इंजन के सारे पैरामीटर्स को सेट कर दिया, इंजन ने अपने आप चलना शुरू कर दिया, देन आई विल नीड पीपल टू रन दैट इंजन। आई विल नॉट डेली नीड पर्सन टू बिल्ड दैट इंजन। सो हमने देखा है इन लास्ट मे बी 5-7 years, 10 years और मे बी मोर कि शेयर्ड सर्विस का कॉन्सेप्ट आ गया है।
छोटी से बड़ी कंपनी सब शेयर्ड सर्विस की तरफ जा रही हैं, खासकर फाइनेंस डोमेन में। शेयर्ड सर्विस का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि कंपनीज ने देखा कि मुझे फाइनेंस को एज अ प्रोसेस देखना है। मुझे फाइनेंस को अगर मैं एज अ प्रोसेस देखता हूं तो मैं फाइनेंस को डिवाइड कर देता हूं कि ये ट्रेजरी है, ये मंथ एंड क्लोज है, ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये रिपोर्टिंग है, ये कंप्लायंस है, ये मेरा बजटरी है, ये मेरा प्लानिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जब मैंने उसको प्रोसेस में डिफाइन कर दिया तो मैंने उसके हर एक वर्टिकल जो बनाया उसके प्रोसेसेस बनाना शुरू कर दिए कि मुझे अगर मंथ एंड क्लोज करना है तो कैसे करना है, क्या उसका स्टेप ए से लेकर स्टेप जेड तक होना चाहिए, मुझे जर्नल प्रोसेस करना है तो उसका स्टेप ए टू स्टेप जेड क्या होना चाहिए। तो मैंने उसके प्रोसेसेस बना दिए। फिर मैंने पीपल हायर करे हु कैन देन वर्क ऑन दोज प्रोसेसेस फॉर मी, रिफाइन दोज प्रोसेसेस ऑन अ डेली एंड रेगुलर बेसिस। वो प्रोसेसेस रिफाइन करने के बाद उस प्रोसेस को इतना रोबस्ट कर दिया कि वो फ्लॉलेस हो गया। ऑब्वियसली विद द चेंज इन द बिजनेस, चेंज इन द मार्केट एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी कमिंग इन, मुझे उस प्रोसेस को हमेशा चेंज और अप टू डेट करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे मैंने अपने बिजनेस को प्रोसेस ड्रिवन कर दिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आना शुरू हो गया। जिन कंपनीज के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ पा रहा था उसके लिए थर्ड पार्टी बीपीओस बन गए, जिन्होंने वो छोटे छोटे कंपनी जो पूरा एक प्रोसेस आउटसोर्स नहीं, जो पूरा प्रोसेस शेयर्ड सर्विस में नहीं ले जा पा रहे थे, उनको एक ऑप्शन मिल गया कि वो उसको आउटसोर्स कर दें डोमेस्टिक बीपीओस में और वो उसको प्रोसेस की तरह रन करें फॉर देयर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सो एंड दैट इज हाउ दे आल्सो ग्रू बिग। सो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेस ड्रिवन होना। नाउ जब आप ये सब करते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सम रेजिलियंस टू टफ सिचुएशंस। ये करना भी आसान नहीं है, प्रॉब्लम्स तो इसमें भी आएंगी, प्रोसेसेस फेल करेंगे, गलतियां होंगी, टेक्नोलॉजी सही से काम नहीं करेगी, रिपोर्ट सही नहीं आएगी, by the nature of human people will make mistakes. So companies will have to be resilient to those tough situations. And tough situations का कोई count या कोई category नहीं है कि यही 50 तरह की आएंगी, यही 100 तरह की आएंगी। There could be many. So वो 1000 तरह की या जो भी जितने भी x numbers की tough situations आएंगी, companies will have to be resilient to tough situations and define to an extent what are critical tough situations to them, जिसके बेसिस पे वो या तो अपना बिजनेस का कॉल ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, एंड देन बिल्ड रेजिलियंस पॉलिसीज अगेंस्ट दोस टफ सिचुएशंस कि मुझे कितना रिस्क लेना है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसके लिए हेल्प करता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आपको बताता है कि मार्केट में बाकी कंपनीज जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, बाकी जो कंपटीशन है वो कहाँ जा रहा है, इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या इंडस्ट्री ही बदलने वाली है, क्या इंडस्ट्री सेम रहने वाली है। वो मार्केट रिसर्च पेपर्स हेल्प करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट सम मनी इन दैट ऑल्सो, कि मैं देखूं कि एज एन एग्जांपल मेरा आज बिजनेस लेटस से मेरे पास एक स्टोर है जो एक मार्केट में है विच इज अ वेरी गुड मार्केट। एज एन एग्जांपल दिल्ली के में साउथ दिल्ली में एक मेरे पास स्टोर है मे बी मोबाइल एसेसरीज का, मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बट रिसर्च ये बोलती है, आई एम टेकिंग ओल्ड एग्जांपल, बट रिसर्च ये बोलती है कि आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद ये स्टोर तो रहेगा नहीं, बिकॉज सब चीज ऑनलाइन हो जाएगी, या लोगों का फुटफॉल इतना कम हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक अप सो मच मार्जिन टू कवर योर कॉस्ट। सो मुझे ऑनलाइन मॉडल में चले जाना चाहिए। तो ऑनलाइन मॉडल मुझे कितना पहले जाना चाहिए विल डिफाइन माई सक्सेस। द सूनर आई स्टार्ट द बेटर आई विल बी, the better resilient I will be to tackle that situation। तो मार्केट रिसर्च उन चीजों में हेल्प करती है। जैसे आज Amazon, Flipkart और अदर e-commerce operators are at an amazing stage, right? बट आज के बाद का आउटलुक क्या है ई-कॉमर्स के लिए? क्या मार्केट रिसर्च कहती है कि क्या लोग कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लेना? क्या मार्केट रिसर्च कहती है कस्टमर स्टिल वुड वांट टू विजिट द स्टोर्स? कोरोना के बाद जब लोग घर से नहीं निकले, विल दे वांट to step out for small things like mobile also, because they have not stepped out for anything else for like 1.5 years? So wo researches will help you spend the right money at the right place। जब आप ये रिसर्च करते हो आपको समझ में आता है कि मेरे पास 10 पैरामीटर्स हैं या 5 पैरामीटर्स हैं जो मेरे लीवर्स हैं बिजनेस को प्ले करने के लिए। जब मुझे लीवर्स समझ में आते हैं तो मैं उन लीवर्स पे काम करता हूं अपनी विजिबिलिटी बनाने के लिए, अपना एज क्रिएट करने के लिए मार्केट में। क्योंकि 5 चीजों पे अगर मार्केट 4 पे काम कर रही है, 5 पे कोई नहीं कर रहा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो आई विल वर्क ऑन दैट 5th लीवर, टेक एन एज इन द मार्केट एंड क्रिएट दैट विजिबिलिटी। वो विजिबिलिटी बना के जो मुझे रेवेन्यू आता है, जो कस्टमर लॉयल्टी आती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू देन मेंटेन दैट क्रेडिबिलिटी बाय
performing all the good work which I've done in the past and course correct as much as possible. एज और विजिबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत पुराना है, टू माय डेज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर एयरटेल. कॉलर ट्यून और हाँ, कॉलर ट्यून का एक कॉन्सेप्ट आया था जो आजकल बहुत कॉमन हो गया और कुछ लोग तो यूज भी नहीं करते. बहुत एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी थी. आपके टीवी पे या आपके मोबाइल पे कोई सॉन्ग चल रहा है, यू डायल अ नंबर विच इज एन एयरटेल नंबर. आप वो नंबर डायल करोगे, एयरटेल की टेक्नोलॉजी उस सॉन्ग को रीड करेगी और आपको बोलेगी ये सॉन्ग है, इसको मैं आपकी कॉलर ट्यून बना सकता हूँ. वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, बट वो टेक्नोलॉजी एयरटेल ने पहले अडॉप्ट करी. उसने वो एज लिया और अपनी विजिबिलिटी बनाई कि वी आर द फर्स्ट वन टू डू. बट टेक्नोलॉजिकली एट द बैक एंड इट वाज वेरी सिंपल टास्क एंड पीपल फॉलोड. सो वो एज बनाना, वो विजिबिलिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है. सो देन दैट दीज टू आर रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ये करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये करने के लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नॉट shy away from experimenting. Take risks, make those calls which may not turn out to be right, but then fix your stop loss. I want x amount of fund for experimenting. गलत होगा कोई बात नहीं, बट सीखेंगे तो उससे कुछ बढ़िया प्रोडक्ट निकालेंगे. We all as professionals should guide our clients to maintain a provision for this. Keep an annual amount which is sufficient for this, so that they can help business grow, they can help business think about future, which can help them have an edge. Obviously बड़ी कंपनीज के पास ये होता है कि they have sufficient funds or they arrange sufficient funds, but we as chartered accountants can help people and our clients to maintain sufficient funds for their day-to-day operations through various means and forms, with MSME schemes also, and with other options which are available through banking and non-banking channels. Like these days we have got investors who are equity investors, VCs who are ready to fund, angel investors who have got small bits to put into business, which collected together makes a big amount, and that makes a big impact to the organization, which is could be a startup, which could be a small company, which could be a medium company also. The other differentiators are talent. Now, for any company to grow, it is important that you hire the right talent. You hire specialized people for the specific functions. MSMEs may not always have funds to hire the top end talent in the market, but that's fine. Till the time you are thinking कि मुझे X चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदा ही चाहिए, and you are committed to make that investment, I think it is worth it. Small companies at their level, medium companies at their level, micro companies at their level should focus to hire specialists for the specific function. For example, if I am a founder, I am not expected to really do all the operations. Finance भी मैं ही देखूंगा, बिजनेस ऑपरेशन भी मैं ही देखूंगा, सेल्स भी मैं देखूंगा, मार्केटिंग भी मैं देखूंगा, स्ट्रेटजी भी मैं देखूंगा, कस्टमर केयर भी मैं देखूंगा. नो, नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट. यू कैन नॉट do everything. If you try and do everything, then you will end up doing nothing in an amazing fashion. But अगर आप अपनी responsibilities share करना start कर दोगे, अगर आप delegate करना शुरू कर दोगे, it will help you do more with less. Otherwise you will struggle doing day to day activities और आप business की growth के बारे में, business को multiply करने के बारे में नहीं सोच पाओगे. So talent and specialization are again key. If and it is my experience, if we work on these parameters, then we can definitely become transnational, which is going to multiple nations and grow as MNCs. These will help you grow within the country as well, but then opportunities always exist to grow beyond the barriers of geographical boundaries. So this will really help. I hope this slide explains well what are the differentiators. Now, while I've spoken about how we as chartered accountants can work on these areas to help our clients, this is a slide which picks up top 5 parameters or top 5 areas where we can help and take companies grow big. This is picked up basis Pareto principle, which says 80-20, which is called as 80-20 rule. 80% of problems get addressed through only 20% of means, and vice versa. So अगर हम ये top 5 problems को address करा दें अपने clients के लिए,
then clients will have great opportunity to grow. So will be our opportunity to grow as chartered accountants also. वो क्या है? पहला, in the world of startups, what has happened is लोगों को इम्पॉर्टेंट होता है पैसा रेज करना, मुझे कहीं से फंडिंग मिल जाए, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर फंडिंग दे दे, चाहे वो मुझे वीसी हाउस फंडिंग दे दें, चाहे वो बैंक फंडिंग दे दे, बट आई नीड फंडिंग. And pre-corona, what has happened is people used to work on valuation, which was driven by additions of customers. मेरे पास कितना कस्टमर बेस है एड्रेस करने के लिए, अगर मेरे पास वो बेस बढ़ता जा रहा है और उस बेस पे पीपल कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, यूज टू गिव अ वैल्यूएशन टू द कंपनी कि आज तो लॉस है बट कभी तो प्रॉफिट होगा, लाइक व्हाट उबर डिड. दे गेव स्कीम्स, दे गेव ऑफर्स, और उन स्कीम्स और ऑफर्स की वजह से what happened, they started to make losses and they said that eventually we'll get into profits. So wo jo focus on valuation tha, that has started to go down in the COVID phase. People, which is founders and investors, have realized कि valuation उनको एक स्टेज तक ले जा सकता है, बट जब तक बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, एक दिन वो बबल फट जाएगा और वो किसी के काम का नहीं रहेगा. So people have now started to look at value also, quite seriously. एंड व्हेन आई से वैल्यू, वैल्यू से मतलब है मेरा वैल्यू इन द बिजनेस. और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है. वैल्यू इन द बिजनेस मींस वैल्यू इन द बैलेंस शीट. सो क्या हम अपने क्लाइंट्स की बैलेंस शीट्स को उतना स्ट्रांग कर सकते हैं, उतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि मैं माय बैलेंस शीट, माय P&L विल स्पीक अबाउट द कंपनी इटसेल्फ, कि क्या एसेट्स हैं, क्या वर्किंग कैपिटल है, क्या नेटवर्थ है, so that wherever me or my client goes, either independently through me or through any other consultant, to raise funds, it is easier for them. Because बैंक में जाएं, investors के पास जाएं, they would also know what is the credibility, what is the value that balance sheet carries, what is the vision of the founder, how is that translating into numbers. वो समझ में आएगा तो आप value focused हो जाओगे. And when it is value focused, it is both in terms of the actual value of the business and the projected value of the business basis the business goals, operations, milestones, जिसके बेस पे हम projections बनाते हैं. Next important thing is MSMEs को access नहीं होता specialist का, जो कि MNCs को होता है. Like I spoke in previous slide कि टैलेंट हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप टैलेंट हायर करो, स्पेशलिस्ट टैलेंट हायर करो, बट MSMEs को एक्सेस नहीं होता उतना. बट वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम रियली हैंडी. हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का, इन सम फॉर्म एंड शेप, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली. तो हम विद इन आवर नेटवर्क कैन बोरो रिसोर्सेज. हम लोग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स, वी हैव बीन हेल्पिंग ईच अदर. सुमित जी का कासा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हम लोग हेल्प करते हैं, थ्रू वेबिनार्स एंड ऑल ऑफ दैट. वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर. सो इम्पॉर्टेंट दैट वी बोरो दैट टैलेंट, स्पेशलिस्ट नॉलेज फ्रॉम ईच अदर एंड हेल्प ड्राइव द राइट मैसेज टू द MSMEs दैट दे हैव समवन बाय एट देयर बैक. उनके पास कोई तो है जो उनको, इफ नॉट इन 6 months और 1 year, कैन मेक देम MNCs, बट हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको MNCs बना सकता है. सो वो स्पेशलिस्ट टैलेंट हमारे पास है. आई थिंक वी शुड यूज दैट टू देयर एडवांटेज, टू आवर एडवांटेज, टू गिव दैट स्पेशलिस्ट टैलेंट टू देम. बहुत सारी MSMEs और उसमें से मेजरली माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज के पास हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं होता. वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोई पर्सन हायर कर सके जो उनका ऑपरेशंस डिफाइन कर सके, जो उनका स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते, जो उनका बिजनेस प्लान बता सके कि आपको बिजनेस ऐसे देखना है, मार्केट को ऐसे देखना है, आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ ये प्रोजेक्टेड है, आपका फाइनेंस फंक्शन ऐसे रन करना चाहिए, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए. या आप जब नेगोशिएट करते हो विद वेंडर्स एंड कस्टमर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ योर शेयर स्मॉल साइज, people do not take you seriously. We as professionals should come handy to them, providing that hand holding support. Yes, we are there. आप एक कदम चलो, हम आपके साथ चल रहे हैं, and we will help you. वो सपोर्ट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट विद आवर एक्सपीरियंस डेफिनेटली दे सकते हैं कंपनीज को. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर बात आती है उसके बाद कि हमने उनको वैल्यू फोकस भी बना दिया, हमने उनको स्पेशलिस्ट सपोर्ट भी दे दिया, हैंड होल्ड भी करा दिया,
बट कंपटीशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, मेगा कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज तो खत्म नहीं हुआ। वो कंपटीशन दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होगा, बिकॉज जब आप जिस मार्केट में एंटर करोगे देयर विल ऑलवेज बी समवन बिगर देन यू। सो वो कंपटीशन इज अ गिवन थिंग, वी कैन नॉट एलिमिनेट कंपटीशन, बट वी कैन एड्रेस द कंपटीशन डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, एमएनसीज को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा साथ होता है टेक्नोलॉजी का। अगर वो टेक्नोलॉजी एमएनसीज को हेल्प कर रही है तो वही टेक्नोलॉजी स्मॉल कंपनीज को भी हेल्प कर सकती है एट अ स्मॉलर स्केल। अगर वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हम एज प्रोफेशनल्स, टेक सेवी प्रोफेशनल्स, अगर हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं छोटी कंपनीज को, तो आई थिंक दैट विल हेल्प देम बिग टाइम। एंड अगेन टेक्नोलॉजी में मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, वन ऑफ द नोन्स रनिंग अ स्मॉल कंपनी, दे वर स्ट्रगलिंग कि मुझे पता नहीं है, मेरा 500 लाइन का 1000 लाइन का डेटा है कि मेरे को किस क्लाइंट से क्या पैसा आना है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे इनवॉइस रेज करके एमआईएस अपडेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका पैसा आता है तो पैसा सेपरेट एक्सेल शीट में रिकॉर्ड होता है, फिर मुझे उसको इस एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, एंड देन कहीं जाके मुझे पता लगता है मुझे किससे क्या लेना है। जो मुझे रियल टाइम चाहिए होता है, और मैं फुल टाइम एक अकाउंटेंट नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ जो मेरे को यहाँ पे बुक्स रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करके मुझे बता पाए। सो वो अकाउंटेंट मेरे को मंथली बेसिस पे सर्विस करता, तो हाउ कैन यू सॉल्व इट? व्हाट वी सिंपली डिड वाज, हमने उसका एक एक्सेल में मैक्रो बनवा दिया विच सेड दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। आपको जब रन करना है एट अ क्लिक ऑफ बटन आप अपना एक्सेल खोलेंगे, मैक्रो प्रेस करेंगे, आपको पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। वेन एवर यू वॉन्ट टू रिफ्रेश यू कैन रिफ्रेश। सो दैट वॉज अ वेरी बिग टाइम सेव फॉर हिम। उस टाइम सेव में जो हफ्ते में उसको 2-4 घंटे 5 घंटे जो भी एक्सवाइजेड अमाउंट लगता था, वो टाइम वो अपने बिजनेस में बेटर लगा पाया। सो वो डेस्कटॉप ऑटोमेशन से लेके रोबोटिक्स इंप्लीमेंट करना या AI ML implement करना is not impossible. Basis the size and scale of the organization, we can do that. Like something like a CRM, something like a cloud space, जिस पे हम लोग भी जा रहे हैं, वो हमारी clients, हमारे MSMEs भी जा सकते हैं, which makes things very very easier for them also. So this is another opportunity in technology. Technology is growing everywhere. So is it in our profession. I think we as professionals should take the maximum advantage of this. Next is our evergreen favorite for chartered accountant, which is finance and the cash flow. By finance here I mean two things: availability of finance to the clients, which is through debt, equity, whatever medium, but more important than that is readiness for any company to be able to take finance. हम मोस्टली हमारे क्लाइंट्स जो पैसा चाहते हैं रेज करना, वो रेडी ही नहीं होते कि उनको कोई पैसा दे। कुड बी बिकॉज ऑफ inadequate compliances, non-efficient record management, could be because of non-availability of collateral, could be because of non-operating of bank account in the right manner, जहाँ पे हम लोग उनको कंसल्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपको फाइनेंस अवेल करना है एट अ पॉइंट इन टाइम, उसके लिए आपको आज ही शुरू होना पड़ेगा, आज ही उस पर काम करना पड़ेगा, सो दैट यू आर ready for that finance in time to come. As you are ready for finance in time to come, then it will be easier for us as professionals also to get them finance, and they will be in a better sound position also. With that finance, whether there is a shortage of finance or abundance of finance, important is then how do you manage the cash flows. पैसा कम है तो भी कैश फ्लो मैनेज करना जरूरी है, पैसा ज्यादा है तो भी कैश फ्लो मैनेज करना जरूरी है। कम है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेरे को बहुत सोच समझ के उसको स्पेंड करना है, ताकि मैं उसको ऐसे एवेन्यूज में लगा सकूं जहां पे मेरे को बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन और बेस्ट आउटपुट आ सके। ज्यादा है तो मुझे उसको एक्स्ट्रा मनी को कहाँ यूटिलाइज करना है, क्या व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे एक्स रिटर्न देगा, मैं कहीं और लगाऊंगा तो एक्स माइनस देगा या एक्स प्लस देगा। दैट कैश फ्लो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I recommend that we do it. I recommend that we ask our clients to do it on a regular basis and timely fashion, so that वो सही डिसीजन ले सकें regarding their cash, which is their day in day out problem. So in my mind, this is a set of 5 key challenges which is faced by MSMEs, and this is though it is in the slide by me, but then there are a lot of research papers which second these 5 challenges. So which means it is not
it is not a sample of a very small set of people, it is a wider sample जिसके बेसिस पे 5 प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, और अगर हम इस सैंपल को लेके एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और हर अपने क्लाइंट को इसमें से कुछ चीज हेल्प करते हैं वर्कआउट करने में, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल. एक केस स्टडी लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एमएसएमई हर एमएनसी कभी ना कभी एमएसएमई जरूर होती है. सो केस स्टडी मैंने पिक किया लिंक्डइन की केस स्टडी विच सेड कि लिंक्डइन कैसे स्टार्ट हुआ. सो लिंक्डइन 1993 में स्टार्ट हुआ, वेयर द एंटरप्रेन्योर रायड हॉफमैन ही स्टार्टेड व्हाइल स्टडीइंग ओनली. उसने वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच किया, गॉट रिजेक्टेड, जो बहुत बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ होता है. स्टार्टअप्स क्या मैच्योर्ड कंपनीज के साथ भी होता है कि दे गेट रिजेक्टेड, बट नो, there is nothing which keeps you or brings you down if you get rejected. That's absolutely okay. Then that guy got a job in Apple, worked on eWorld, Apple's version जो AOL बना. उसके बाद उसने एक फिजुसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया. 1997 से वहां से रिजाइन किया. So it has taken already 4 years, guys. 1993 started, failed in the same year, worked in a company, again second company, and then resigned from that company. Then worked on a company called PayPal, which he sold to eBay in 2002, again 5 years. Then 2002, what he did, he met friends and explored the idea. In 2003, the guy launched LinkedIn. Now important, 1993 से 2003 होता क्या है कि हम लोग इस स्टेज पे आ जाते हैं वेयर वी जस्ट लूज होप, वेयर एज persistence pays always in the long run. रोज हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, अगेन एज एमएसएमईज क्लाइंट्स को भी, एज प्रैक्टिशनर्स हमें भी रोज हमें कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं, बट हमें उस चैलेंजेस को फेस करके होप नहीं छोड़ना चाहिए. शुड स्टिल स्टिक टू अवर मिशन, अवर गोल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली कोर्स करेक्ट, एंड देन रिफाइन द प्रोडक्ट्स. उसका हम पीओसी लॉन्च करते हैं, जिस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसको प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको MVP बनाते हैं, विच इज मार्केट वायबल प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद उसको फुल फ्लेजेड लॉन्च करते हैं, विच इज व्हाट दिस गाय डिड इन डे आउट. सो 1993 से 2003 तक आइडिया गया नहीं था माइंड से. आइडिया वाज स्टिल देयर ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू. ही वांट्स टू रन अ सॉफ्टवेयर कंपनी which got launched in 2003. Then what happened, 2003 में इन्वेस्टमेंट मिली सेक्वा कैपिटल से. Then they introduced after 2 years their revenue and first business lines, which is jobs and subscriptions. कि आप जॉब पोस्ट करो, सब्सक्रिप्शन लॉन्च करो. That is how their revenue journey started. After this, what they did was, Dan Nike took a position of chief executive officer. Jeff Vanier ने join किया as president and CEO. Again, 4 years after. Then 2014, they officially launched in China in the Chinese language. Look at the struggle. What we understand today is China doesn't allow search engines like Google because they have their own search engine. But these guys definitely did a hard work to launch LinkedIn in China in the Chinese language. In 2015, they became one of the 10 most popular websites in the world. In 17, they had got 500 million users with 10 million job postings. 1993, he started working. 2003, they conceived an idea which is market viable. 2003 to 2017 is what their journey is to 500 million users, and 2017 to 2021 is definitely a journey which is very well known to everyone. They already have become unicorns in the market. So this is how the organizations grow. This is how the persistence pays you. Important is that we stick to the grounds, the rules of the house, deliver what we actually intend to deliver in the market. So largely this is about my presentation on the journey of the organizations, which is MSMEs, how we can work together, and how we can make MSMEs grow and go to MNCs.
I think quite crisp a presentation for us to now discuss and deliberate. Any questions, any discussions, more than happy to have with the group. Ujjwal, you can take. Sir, Ranjit. And any Sir, participant, Pankaj, you have covered the topic. Yes, Okay. this covers the So presentation. in the Obviously, next there. step, Sorry, sorry, Sumit ji. so in next मैं minutes we will discuss the queries. If you have any query, kindly raise your hand. I will unmute and will take up. Ji Pankaj ji, please. Sir, please unmute Pankaj. Definitely. I absolutely agree to you, Sumit ji. Let us take queries. Important is this is actually the foundation of what we intend to do and discuss for the profession. Next, obviously, is followed with taxation, and the next session is obviously followed with again working on pitch decks, valuation, and all of that, which will help the colleagues much better. But yes, happy to pick up questions on the topic today. So Sir, first, इसमें please. संदीप जी का क्वेश्चन है कि like GSTN on GSTN, can we verify his name and details from site? Registration is correct and valid. वेरिफिकेशन का प्रोसीजर अभी MSME साइट पे अवेलेबल नहीं है. जनरली MSMEs एज आई आंसर्ड, जनरली MSMEs अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट दे गेट आफ्टर राइटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द इनवॉइस, सो जनरली वो देते हैं. आप सर्टिफिकेट्स उनसे मांग के वेरीफाई कर सकते हैं. अच्छा सर, थैंक यू. अगला क्वेश्चन है दीपक कुमार जी का. उज्जवल जी एक क्वेरी मुदित जी की ले लेते हैं. ठीक है. मुदित जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. Modi ji, please ask. Okay, I am moving forward. Mitu ji, kindly mute yourself, unmute yourself. Hello. Yeah, can you hear me, sir? Your voice is little feeble. If you can be little loud, that will help. Can you hear me now? Yes, much better. Yeah. Is there any place where we can find the government schemes for MSMEs? There is Yes. list of schemes. Yes, government schemes are divided into two parts. One is the central government driven schemes. Second is the state government driven schemes. Central government driven schemes के लिए central government की website है. MSME पे you may find MSME Government of India. You will find all these schemes in a section which is on MSME. Ministry of MSME की site पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको एक subsection मिल जाएगा. और अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स में जाना है तो जिस स्टेट पे आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस स्टेट की MSME स्कीम की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. देयर इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर विच इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कमीशन. जनरली हर स्टेट में DIC को राइट दिया हुआ है MSME की स्कीम्स बनाने का, उसको मॉनिटर करने का, फैसिलिटेशन साइट्स सेंटर्स रन करने का. सो DIC की साइट कुड बी योर फर्स्ट सोर्स पॉइंट. और इसके अलावा अगर आपको किसी स्टेट स्पेसिफिक साइट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को सेपरेटली बता दें, मैं आपको लिंक दे दूंगा. Okay, sir. Thank you. नो प्रॉब्लम. Ujjwal ji, please take up the queries. सर, दीपक कुमार जी का क्वेश्चन है, in case of registration as a trader, investment in plant and machinery is required. So investment in plant and machinery. So let us go back to the definition slide. That is important for us to understand this. So investment is less than 1 crore. So which can be zero also. For trader also. For trader also. Yes, there are no change in the rules. It says the traders are added. So for even for service sector, you would appreciate this. A lot of service companies would not have investment on their balance sheet to begin with because उनको investment की जरूरत नहीं पड़ती, या उन्होंने कोई software लिया होता है which they have expensed off.
और कैपिटलाइज नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट वहां पे भी नहीं आती, बट दे गिव दैट रजिस्ट्रेशन बेसिस जीरो नंबर। वैभव अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, सर इफ बोथ बायर एंड सेलर आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, देन आल्सो बायर विल प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। यस, सेलर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और सेलर अगर रजिस्टर्ड है तो आपको सारे सेलर के बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, रिचा जी का क्वेश्चन है, सर डज एमएसएमई प्लेस एनी बेनिफिट रोल in terms of tax in case of export of service? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का एमएसएमई बेनिफिट? हाँ जी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का स्पेसिफिक बेनिफिट तो गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम देख के ही हमें पता करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मेरे पास स्कीम का नाम नहीं है अभी हैंडी, आई कैन सर्च एंड फाइंड दैट स्कीम इफ इट इज अवेलेबल, बट देयर इज डेफिनेटली सर्विस इंसेंटिव विच इज गिवन टू एवरी एक्सपोर्ट यूनिट, बी इट इन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। SIES करके वेबसाइट है विच गिव्स यू बेनिफिट बेसिस योर टर्नओवर, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट मिल जाता है, जिसके अगेंस्ट आपको बॉन्ड्स और पॉइंट्स मिल जाते हैं विच आर रिडीमेबल। सो दैट बेनिफिट इज देयर विच इज आउटसाइड ऑफ MSME फॉर एनी एक्सपोर्ट यूनिट। सर मुदित जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयर्ड सर्विस? व्हाट इज शेयर्ड सर्विस? सॉरी, कैन यू स्पेल SHARED? शेयर्ड सर्विस। शेयर्ड सर्विस। सो शेयर्ड सर्विस होता है जो BPOs होते हैं, BPOs क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं कि एक कंपनी है जो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, वो उसका उतना रेवेन्यू नहीं है, सो वो क्या करते हैं, वो एक फंक्शन बना लेते हैं विच इज अ प्योर फाइनेंस फंक्शन, जिसमें प्रोसेसेस बना देते हैं। सो फॉर एग्जांपल फाइनेंस की अगर आप फ्लो की बात करें तो फाइनेंस का फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्लो स्टार्ट होता है परचेज करने से, जिसके लिए आपको एक प्रोक्योरमेंट डिवीजन चाहिए जो परचेज ऑर्डर नेगोशिएट करेगा, परचेज ऑर्डर रेज करेगा, माल आएगा, माल आने के बाद उसकी इनवॉइस बुकिंग होगी, इनवॉइस बुकिंग में उसकी पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद आप सर्विस या कमोडिटी सप्लाई करोगे, वो उसका सेल होगा, इनवॉइस रेज होगा, पैसा आएगा, पैसे की सेटलमेंट होगी। इसके पूरे बीच में आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, इसके बीच में आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे, मंथ एंड क्लोज भी करना पड़ेगा, मॉनिटर भी करना पड़ेगा, और अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए उस पर इफेक्टिव वो करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको हर एक का एक्सपर्ट रखना पड़ेगा तो इट विल बी टफ फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। सो केम द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड सर्विस, जिसको हम BPO बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक फंक्शन में प्रोक्योरमेंट, इनवॉइसिंग, पेमेंट, रिकॉर्डिंग इनवॉइस विच इज सप्लायर इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस, उसका पेमेंट, कलेक्शंस, मंथ एंड क्लोज, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, बजटरी कंट्रोल, उसके लिए सारे फंक्शंस बना दिए और उस हर फंक्शन में एक स्पेशलिस्ट हायर कर लिया। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जाती है छोटी कंपनीज के पास, यू कैन नॉट अफोर्ड द फुल फंक्शन, आप मेरे पास आओ, यू गिव मी वॉट एवर फंक्शन यू वांट टू गिव इन दिस, जितना आपको करना है, आपको सिर्फ पेमेंट चाहिए, सिर्फ प्रोक्योरमेंट चाहिए, कम टू मी, आई विल वर्क ऑन योर बिहाफ ओनली ऑन प्रोक्योरमेंट, ओनली ऑन पेमेंट्स, ओनली ऑन बैंक रिकंसिलिएशन, और वो मैं आपको सर्विस दूंगा। सो एक ही बंदा, एक ही एम्प्लॉय उस कंपनी में बैठा हुआ, शेयर्ड बेसिस पे 10, 5, 15 क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ वर्क, उतने क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहा होता है। दैट इज अ शेयर्ड सर्विस, ए वन रिसोर्स बीइंग शेयर्ड अक्रॉस। ठीक है सर, मुदित जी का क्वेश्चन है, फ्रॉम बैंक पर्सपेक्टिव व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MSME अदर देन इंटरेस्ट बेनिफिट, also what subsidies are available for MSME? तो बैंक पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट के अलावा कोलैटरल फ्री लोन है विच इज़ अ मुद्रा स्कीम, जो सेंटर की स्कीम है। 10 लाख रुपए तक का लोन कोलैटरल फ्री मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जितने छोटे बिजनेसमैन हैं वो इसका एडवांटेज ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक्स जो स्कीम है वो बहुत सारी हैं, more than 20 schemes for center and state also has 15-20 schemes each state. So वो schemes डिटेल में डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। स्पेसिफिक कुछ होगा तो आप मेरे को सेपरेटली पिंक कर दीजिए, मैं आपको स्कीम दे दूंगा। आई हैव गॉट लिस्ट ऑफ ऑल द स्कीम्स अवेलेबल। सर वैभव अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, सर इफ वी हैव प्रोवाइडेड डिलेड इंटरेस्ट इन बैलेंस शीट ड्यू टू मोर देन 45 days outstanding, then is it compulsory to actually pay the interest to buyer? Because in actual world this is common understanding to settle the dues without interest.
सो अगर आप MSME एक्ट के हिसाब से चलेंगे और उसको क्लेम करेंगे थ्रू फैसिलिटेशन काउंसिल और मे बी इन अपील थ्रू कोर्ट्स एंड ऑल, आप बिल्कुल ले सकते हैं, अलाउड है। और आप ये भी कर सकते हैं प्रोविजन में कि जिसने पे किया है आपको इंटरेस्ट, उसको उसका डिडक्शन नहीं मिले। यू कैन इंश्योर दैट, एक्चुअली कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। अगर मैं प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा हूँ एक कस्टमर के साथ, मेरा बायर है, सो अगर मुझे उससे रेगुलर काम करना है तो मैं उसको फैसिलिटेशन काउंसिल में सेटल करके ज्यादा बेटर खुश होऊंगा रादर देन उससे इंटरेस्ट लेके। दैट्स अ बिजनेस डिसीजन, दैट इज नॉट अ लीगल डिसीजन। लीगली यस, आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, वो बिजनेस डिसीजन है, मुझे नहीं लेना क्योंकि मुझे उससे कल फिर काम करना है, मुझे उससे और माल बेचना है, दैट विल गिव मी प्रॉफिट। सो वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्वर्सेशन है, लॉ अलाउ करता है। फैसिलिटेशन काउंसिल में भी अलाउ करता है, अगर आप उसको कोई चैलेंज करता है ईदर ऑफ द पार्टीज तो वहां भी अलाउ करता है कोर्ट्स में, और आप इंडिविजुअली सेटल करते हैं और आप डिमांड करते हैं, सामने वाला पे करता है तो भी अलाउ करता है, एट ऑल 3 स्टेजेस। Any other queries? Please raise your hand. I think, sir, we are done with the queries. Over to you, Sumit ji. One more query is there from Vijay Kali, sir. It would be, sorry, query hai. It would be better if all the schemes at least CG explained, central government explained, so that it serve main purpose, I guess, in giving awareness to clients in all aspects. Actually, he's asking for CG explained, CG Central government schemes, I think. हाँ, सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ए सेड, आई हैव गॉट लिस्ट ऑफ ऑल दी स्कीम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस पर हम अगर सुमित जी कहेंगे तो वी कैन हैव सेपरेट सेशंस ओनली ऑन स्कीम्स, जहाँ पे हम वी कैन कीप अ टाइम एंड वी कैन टॉक स्कीम बाय स्कीम क्या एलिजिबिलिटी है। Can Because we अपने आप cover में it बहुत बड़ा टॉपिक है। on Sunday? Sunday we have session by you, Pankaj sir. So हाँ। can we cover in that session? एक्चुअली वो सेशन थोड़ा सा पैक्ड है क्योंकि उसमें हम बिजनेस प्लान, पिच डेक, वैल्यूएशन कवर कर रहे हैं। Okay. सो वो एक अपने आप में Okay. वो है। बट व्हाट आई विल डू इज, अगर टाइम बचेगा उसमें तो आई विल कीप दैट स्कीम्स का डॉक्यूमेंट हैंडी, आई कैन टॉक अबाउट इट, दैट इज Sure, नॉट अ sure, प्रॉब्लम। sir, sure. And Ravi Gupta sir is asking some. Ravi sir, are you there? Kindly unmute yourself, Ravi sir. हाँ सर मेरा छोटा सा सवाल है कि अभी जो हमारी क्लैरिफिकेशन आ रही थी रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को दे हैव इंक्लूडेड इन SMEs, बट उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ आ रहा है कि दीज आर ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बैंकर्स एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हाट डज दैट मीन? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो होता क्या है कि MSMEs का जो प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड यूटिलिटी, जो छोटे ट्रेडर्स या छोटे मैन्युफैक्चरर्स, छोटे सर्विस कंपनीज हैं, वो बैंक से फाइनेंसिंग लेने के लिए करते हैं। ठीक है, सो फाइनेंसिंग लेने के लिए अगर आप करते हो तो आप जब बैंक्स फाइनेंस करते हैं तो ऑब्वियसली वी नो कि बैंक को रिपोर्ट करना होता है RBI को अगेंस्ट व्हाट रिजर्व, व्हाट दे हैव यू नो फाइनेंस्ड। सो जो अभी भी जो स्कीम है वो स्कीम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए भी वैसा ही है कि आप उसको एक्सक्लूड करते हो फ्रॉम रिपोर्टिंग, विच मीन्स वो जो पैसा आप स्मॉल कंपनीज को दे रहे हो वो आपकी CRR की वजह से बाउंड नहीं होता, यू नॉट बाउंड टू मेंटेन CRR, तो लिक्विडिटी ज्यादा आती है। राइट। उसी पर सर अभी आप एक बात कर रहे थे ना कि उसमें जो हमारे बेनिफिट्स हैं 3 लाख करोड़ का पैकेज है, सो दैट विल बी स्प्रेड अलोंग द manufacturing sector also, but yes. what I'm making is, what the point I want to make is the qualifications are, these are only for the purpose of included in SME sector, only for the purpose of classifying it as priority sector lending by the bank. Is it true? हाँ, सो वैसा ही है। जो 3 लाख करोड़ का पैकेज एग्जांपल मैंने लिया था वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही था। सो उसमें जब पिछले कोविड वेव में 2020 में जब स्कीम्स निकाली थी, विच वाज फंड्स ऑफ फंड्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, गारंटी, क्रेडिट गारंटी बाय द गवर्नमेंट, वो जो 3 चीजें थी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ही। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ऐसे डिफाइन किया गया था, जो MSMEs हैं इस डेफिनेशन में फॉल करती हैं, दो शुड बी गिवन प्रायोरिटी टू फंड। उसमें एक कंडीशन और लगा दी थी जिसकी वजह से MSMEs को प्रॉब्लम भी हुई थी कि 28 फरवरी या 2 फरवरी, आई डोंट रिमेंबर द डेट, वो एक्स डेट को 28 फरवरी 2020 था। फरवरी 2020 में जिनका आउटस्टैंडिंग है उसका 20% क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट विल टेक। तो जिनके पास एक्चुअली फंड नहीं, बोरो नहीं किया हुआ, तो उनको बेनिफिट पहुंचा नहीं था, नहीं पहुंचा। दैट्स राइट। हाँ,
तो करा तब भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए था, बट वो डिफरेंटली करा था, तो उसका एडवांटेज उतना नहीं पहुंच पाया था। सर रिचा जी का क्वेश्चन है, सर हाँ जी सर। जी प्लीज। सुनील जी इज ऑन अनम्यूट, प्लीज आस्क योर क्वेरी सर। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। पंकज जी, मैं कल एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा रहा था, तो उसमें जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट वाला जो पॉइंट आता है ना, वो उसमें शेडो में होता है कि ऑटोमेटिकली वो वहां से पिक करेगा जी। तो मेरा तो उसका अप्लाई हो गया, लेकिन वो तो उसने मुझे जब मेरा सर्टिफिकेट निकल के आएगा तब जाके वो कल कलेक्ट करेगा या अपने आप ही ले लिया होगा उसने? सो उसमें क्या होता है, आपको वो शैडो कर देते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपने पैन नंबर दिया जो आप देते हो, तो बोलता है कि आपने आईटीआर कौन सा फॉर्म फाइल करा था, आप क्लिक करते हो एक्स फॉर्म, वो बोलता है कि अगर फाइल आपने एक्स फॉर्म किया तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट सब उठा लूंगा, और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो भी पैन कार्ड से आ जाएगा, तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से आपके टर्नओवर इनकम टैक्स की टर्नओवर मैच कर लूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से पिक करके आ जाता है। अगर कोई क्वेरी होती है, उसमें लिखा होता है नीचे, अगर कोई क्वेरी होगी सो विल कम बैक टू यू, सो उसमें क्वेरी आ जाता है कि आपके टर्नओवर इनकम टैक्स में कुछ और है, जीएसटी में कुछ और है, एज एन एग्जांपल। और अगर नहीं होता तो सर्टिफिकेट इशू कर जाता है, वहीं से अमाउंट फीड हो जाता है। फिर भी आपका सर्टिफिकेट में कुछ चेंज कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनुअली अप्रैल से जून के बीच में आपके पास एक रिमाइंडर आता है कि आपने लास्ट टाइम आप एज एन एग्जांपल माइक्रो क्लासिफाइड थे, अपना टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, हम देख लें आपको माइक्रो करना है या मीडियम करना है या स्मॉल करना है। तो वो एक ट्रिगर गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे ही ट्रिगर आप भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट टू माय एमएसएमई सर्टिफिकेट, जहां पर आप बोल सकते हैं अब मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है मिड ऑफ द ईयर, सो आप ऐड करा सकते हैं, नहीं तो एनुअली तो वो ले ही लेगा। ठीक है सर, एक अभी जो बात चल रही थी स्कीम्स की, जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्लीज आप संडे को ना वो एक लिस्ट चेकलिस्ट प्लीज लेके आना अपने साथ जी, और शेयर भी कर देना, कि सो दैट अगर हम उस पे डिस्कशन भी नहीं कर पाए ना, तो सो दैट एवरीबॉडी कैन रीड दैट स्कीम। हाँ, शेयर तो मैं वैसे भी कर दूंगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं क्या करूंगा, मैं आई विल कीप स्कीम्स हैंडी, डिस्कस करने का समय मिला तो जरूर करेंगे, नहीं तो मैं उसके बाद शेयर कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बाकी सर बहुत बढ़िया सेशन था, जैसे आज का आपने स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया है, तो आई होप के 3 दिन भी और अच्छे आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सुनील जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर, रिचा जी का क्वेश्चन है, सर डज एमएसएमई प्लेज अ बेनिफिट रोल इन टर्म्स ऑफ टैक्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एंड हाउ इज स्टार्टअप एंड एमएसएमई रिलेटेड? टैक्स का कॉन्सेप्ट हम कल एड्रेस कर रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू स्टील द थंडर, सो उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, एमएसएमई और स्टार्टअप्स कैसे रिलेटेड हैं? सो एवरी स्टार्टअप इज एन एमएसएमई, बिकॉज जब आप स्टार्टअप होते हैं तो आप जनरली बाय द डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप यू विल बी एट अ जीरो टर्नओवर। ठीक है, यू मे हैव इन्वेस्टमेंट्स, यू मे हैव अदर थिंग्स टू टिक इन द बॉक्स, कि मैं ये चीजें फुलफिल कर रहा हूँ, बट अब माइक्रो तो होते ही हैं। So every startup will fall under a micro definition of MSME, which is there on the screen. आप उसके अंदर फॉल करते हैं, बट स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कल बात भी करेंगे, तो वो आपको सेपरेट इनकम टैक्स बेनिफिट देता है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपको बिजनेस बेनिफिट देता है, जो एमएसएमई स्कीम्स में हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है। सर एक प्रकाश जी का क्वेश्चन है, let us suppose I have an investment in 2 plants, one in Faridabad and other in Roorkee. But the investment in plant located in Faridabad is qualified as per the limits provided under the Act. So can I be registered under the MSME for plant located in Faridabad and get benefits provided under the Act? नहीं सर, वो पैन नंबर ड्रिवन होता है। जैसा हमने बात करी, अगर आप एक ही एंटिटी के 2 प्लांट्स हैं तो आपको टोटल ही देखना पड़ेगा, which is carrying 1 PAN. एक और है सर मुदित जी का, कैन एमएसएमई लाइसेंस बी ऑब्टेन्ड फॉर आर्किटेक्ट सर्विसेज? Yes. So It is not a license, it is a registration. So it is not a license to operate. It is a registration to claim benefit. Definitely sir, definitely. So I think all query we have addressed, and now any other participant, if you have any query, so kindly unmute and ask, otherwise we will close in 5 minutes. And I have a small query. जी excuse me sir, sir, please. रवि गुप्ता सर। जी जी रवि जी। हाँ सर, पंकज जी, मेरा सवाल दिया था छोटा सा, जैसे 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट है,
मतलब 1 यूनिट का लिमिट इन्वेस्टमेंट है 1.25 करोड़, टर्नओवर है 4 करोड़. How do we deal? Both the terms should, both the conditions should be satisfied. Both the conditions should be satisfied. Plant अगर and आप machine should उसमें also be lower than that, and this turnover should also be lower than that. जी Only that will come under this. यस, Right. तो आप माइक्रो में नहीं आएंगे, आप मीडियम में स्मॉल में आ जाएंगे. नहीं सर, फर्स्ट मीडियम में पहुंच जाते हैं तो टर्नओवर उसका जैसे इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ होगी, टर्नओवर 150 करोड़ का है, तो हाँ. दैट मींस इट विल नॉट रिमेन मीडियम टर्म. हाँ यस, फिर नहीं होगा. यस, My point is this, both the my conditions are both to the be conditions should be satisfied. satisfied. Yes, both the conditions should be satisfied. Composite conditions are to be satisfied. Absolutely, absolutely. Okay, thank you so much. Thank you. No problem, no problem. Thank you, Ravi sir. Ravi sir from Jammu and our very senior member, always ready to attend the session. And any other members, if you have any query before closing, and every participant is giving wonderful feedback, Pankaj ji, for your session. No, thank you so much. I was also looking at the chat box to see अगर कुछ query है तो मैं साथ साथ पढ़ के आंसर कर दूं, but then I think fairly covered. रोशन जी का hand raise हुआ है. Before that, lawyers can get MSME registration. हाँ. Yes, and share link of website of MSME registration and startup registration. हाँ, वो Definitely. MSME registration की site मैंने इसमें लिखी थी, but link मैं I will give the link. Kindly incorporate that link in this slide so that it will be handy for ठीक है, circulation. okay, I will do Sure. that. That's fine. हाँ. That's fine. And Roshan ji, kindly unmute yourself. Every participant is allowed to unmute. Roshan ji, are you there? यस सर. Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एमएसएमई में क्या अगर मेरे 2-3 बिजनेस हैं, प्रोप्राइटर से मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या मतलब कि एक ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मिलेगा या उस सबके लिए अलग मिलेगा? एक ही मिलेगा सर, पैन नंबर ड्रिवन है, क्योंकि आप तो सर इनकम उसके टैक्स क्या करना रिटर्न एक पड़ेगा फाइल फिर? करते हैं और जीएसटी भी आप एक ही कैरी करते हैं प्रोप्राइटरशिप में, तो दोनों चीजें वेरीफाई होती हैं, तो एक ही मिलेगा. असल मान लीजिए मैंने न्यू स्टार्टअप है, मतलब मैंने कोई भी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है और मैं 2-3 बिजनेस मतलब सेगमेंट मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का या कोई भी और बिजनेस डाल रहा हूँ, तो क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? सर अगर एक ही पैन नंबर ड्रिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोप्राइटर हैं और अपने ही पैन से सारे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ही रजिस्ट्रेशन में चाहिए आपको, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा. या सर ऐसा कुछ मेंशन करने का कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है? नहीं, वो पैन नंबर से पिक करता है ना. आप पैन नंबर डालेंगे और उसमें आप बोलेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा कोई आईटीआर रिकॉर्ड नहीं है, मैं खुद मेंशन करना चाहता हूँ. जहाँ पे आपको पूछा जाता है ना, हैव यू फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न, आपने नो कर दिया तो आपका एलिजिबल फील्ड आ जाता है. एक्चुअली सर मैंने ना एक अप्लाई किया तो वो मिल गया, जब सेकंड जॉब में अप्लाई किया तो उसमें वो आ गया कि आपका पेन पर एक अप्लाई हो चुका है, तो सेकंड इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो आपको एक ही साथ देखना पड़ेगा, उसको अलग अलग नहीं अप्लाई कर पाएंगे. पंकज जी, इसमें क्वेश्चन है, जैसे कोई आजकल जीएसटी में कैटेगरी वाइज आप जीएसटी नंबर ले सकते हो, प्रोडक्ट वाइज, तो देन उस केस में हम लोग अलग अलग ले सकते हैं क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज तो ले सकते हैं, बट जीएसटीएन नंबर सेम रहता है ना. आपका पैन नंबर जो बीच में पैन का कोड है वो हमेशा सेम रहता है. जीएसटी का नंबर हमारे अलग अलग हो जाते हैं. जीएसटी पंकज जी इज टॉकिंग अबाउट कि बिजनेस वर्टिकल के अकॉर्डिंग हम 2 जीएसटी नंबर ले सकते हैं. हाँ, बट अच्छा बिजनेस वर्टिकल के अकॉर्डिंग, ओके, हाँ, जी. तो उसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सेपरेट नहीं होता, वो पैन ड्रिवन ही होगा. ओके. एंड पंकज जी, एनी पार्टिसिपेंट जी, सर एक क्वेरी और है, प्लीज डिफाइन स्टार्टअप. मैं लेता हूँ सर लास्ट क्वेरी आपकी. प्लीज डिफाइन स्टार्टअप. मुदित जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी, क्योंकि ये क्वेरी सबसे पहले होनी चाहिए थी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क पंकज जी, प्लीज डिफाइन स्टार्टअप इन. सो स्टार्टअप का डेफिनेशन एक्चुअली बहुत मजेदार है, क्योंकि इसका टेक्निकल डेफिनेशन है नहीं. एनी बिजनेस दैट यू स्टार्ट टू डू, उसके लिए आपने एक भी स्टेप ले लिया, यू आर क्वालिफाइड to call yourself as a startup. Now it is important for you to think, decide basis the path that you carve for your business, that you want to be registered as a startup or not. If you want to be registered as a startup, then there is a definition कि आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्टार्टअप में रजिस्टर तब करा सकते हैं जब आपका बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए, आइडियाज नए होने चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, कुछ ऐसा नया करना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हो रहा है, किसी पुरानी कंपनी से अमेलगमेट डीमर्ज होकर नहीं बनना चाहिए. आप कुछ सॉल्यूशन, आप या तो आप पुराने सॉल्यूशन को नए तरीके से पोजीशन कर रहे हैं जिससे आपकी कंपनी क्वालिफाई होती है कि मेरा सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है,
या प्रॉब्लम ही आपने नहीं आज देखी कि ये प्रॉब्लम अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज एग्जिस्ट करी तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाला, तो प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो वो क्राइटेरिया है स्टार्टअप को रजिस्टर कराने का। स्टार्टअप खुद को स्टार्टअप कहलाने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन और करूंगा। कोई भी कंपनी बिजनेस में मार्केट में क्यों अवेलेबल होती है? दो ही कारण की वजह से अवेलेबल होती है। या तो आप कुछ ऐसा सॉल्व कर रहे हैं जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, या जो किसी ने सॉल्व किया वो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि उस तरीके से आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। ये सिंपल टर्म्स में स्टार्टअप की इनोवेशन को समझने का तरीका है। जो इनोवेशन वर्ड यूज किया ना स्टार्टअप की डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका समझने का तरीका है। राइट। पंकज जी, एक और लास्ट क्वेरी लेते हैं ऋचा जी की। कैन यू शेयर हाउ वी कैन चेक आवर बिजनेस नेचर इज मीटिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टार्टअप डेफिनेशन, लाइक just a minute, definition like how we can prove that our business falls under those specified categories. So उसके लिए आपको बिजनेस नेचर का स्टडी करना पड़ेगा कि बिजनेस का नेचर क्या है, वो सॉल्व क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम, क्या वो प्रॉब्लम इनोवेटिव है नहीं है। यू विल हैव टू डिफाइन, यू हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ इट दैट वे कि अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आए हैं या कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, देन इट इज अ नो ब्रेनर, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट अगर वो नहीं लेके आए हैं बट आपको लगता है कि इसमें कुछ थोड़े अमेंड्स किए जाएं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो आप उसको क्वालिफाई करा सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि हम MSMEs को MNC बनाने में हैंड होल्ड का सपोर्ट करना चाहते हैं रादर देन सिर्फ एक कंप्लायंस का सपोर्ट करने के लिए, तो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि अगर मैं अपने क्लाइंट को ये गाइड कर पाऊँ कि आपको बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि आपको मार्केट में लंबे समय तक रहना है, लंबे समय तक रहने के लिए आपको अपने बिजनेस को इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से देखना है। अगर आप उसको वैसे देखेंगे तो आप कैसे बिजनेस करना चाहेंगे। एज सुन एज यू आस्क द राइट क्वेश्चन टू योर क्लाइंट, वो पता लगेगा कि वो इनोवेशन कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। देन हाउ डू यू डिफाइन दैट इनोवेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, यू विल be able to succeed in that to obtain that registration. So thank you Pankaj ji, and definitely all get the benefit. Sushil Verma ji, benefit in term of rate of interest of credit limit from bank. You want to say कि interest rate of interest का जो benefit मिलता है credit limit from bank, it can be one benefit definitely. Sir, yes, it can be benefit. But scheme to scheme vary करेगा, आप किस इंडस्ट्री में है, गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, कौन सी एंटरप्राइज है, उन सब चीज़ों पे वेरी करेगा, बट यस देयर विल बी बेनिफिट। So thank you very much. संदीप जी का क्वेश्चन और है लास्ट। If any company has not paid in 45 days to MSME registered vendor and not disclosed in his financials also, is this any offense for the company? Vendor has no objection if he has not paid within 45 days. सर ऑब्लिगेशन जो है वो कंपनी पे है इसको डिक्लेयर करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि आपको रिकॉर्ड करना है। बाकी उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में फॉर अदर एंटिटीज देयर आर इन फ्यू फॉर्म्स देयर इज अ प्रोविजन, बट अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप इसको रेज करा सकते हैं, आप इसको ऐड करा सकते हैं और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अग्रीव्ड नहीं हैं तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, दैट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे उसके साथ बिजनेस करना है तो मैं उससे आज इंटरेस्ट मांगू या अगला बिजनेस मांगू, तो पैसा लेता हूँ और बाकी काम करता हूँ, वो वाला सिचुएशन है इसमें। राहुल जी की क्वेरी, राहुल जी का kindly unmute and on your video. राहुल जी is my good friend. राहुल जी कहाँ पर हैं आप? Kindly on your video, good evening, sir. video also. Rahul ji, please, please ask your query. Sir, I went to DI Karnal to ask them whether we chartered accountants and advocates are also MSME. Being we go to MSME registration, but when we ask for the real benefit for against the MSME registration, so we got rejected many times. So मेरी वहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह से बात हुई, डिस्कशन हुआ, तो नॉट बाय ऑन रिकॉर्ड, नॉट ऑन डॉक्यूमेंट, बट दे सेड कि सर आप तो फैसिलिटेटर्स है, यू आर नॉट इन सर्विस सेक्टर। तो कहीं पे डेफिनेशन दी गई है एमएसएमई, मैंने घर आके एमएसएमई डी एक्ट दोबारा पढ़ा, कहीं भी सर्विस सेक्टर की ऐसा डेफिनेशन तो कहीं डिफाइंड है नहीं।
तो कहीं पे लिखा है इंडियन नॉलेज की भी कहाँ जहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हो कि द सर्विस प्रोवाइडर हु आर फैसिलिटेटर्स इन अ फाइनेंशियल सेक्टर और ऐसा कुछ हु आर बी एलिजिबल फॉर द एमएसएमई. Even I argue that ki I got a MSME registration certificate which itself says I am an MSME. तो उनका प्ली ये था कि MSME registration is a automatic process, उसमें ज्यादा इशू, उसमें आप बेनिफिट्स हम नहीं दे पाएंगे. So आप क्या बेनिफिट लेने गए थे? That will define that. क्योंकि by the मैं सर ट्रैवल बेनिफिट लेने गया था कि अगर हम 10 प्रोफेशनल 12 प्रोफेशनल फॉरेन जाते हैं फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द export of services with the another countries. So वहाँ पे एक benefit है ना, 80% of the expenses will go to reimbursement. तो वो application वो ली नहीं. ठीक है. So I think उसमें आपके पास so पहले बात करते हैं लीगल पोजीशन की. उसमें सर्विसेज पे किसी भी सर्विस का कोई रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड नहीं है, जैसा आपने भी एक्ट में पढ़ा कि कहीं सर्विसेज में डिफाइंड नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सक्लूडेड. All services are covered, which includes chartered accountant, lawyers, everyone. इसीलिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है. कैटेगरी में भी लिखा होता है माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल सर्विसेज, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम सर्विसेज, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग, बट मीडियम का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, बट वो मिलता है. सो लीगल पोजीशन है कि आपको मिलता है. नाउ व्हेन यू गो एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, तो उसके लिए स्कीम डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं कि स्कीम डॉक्यूमेंट में कहीं हमें फैसिलिटेटर सेपरेटली ऐड किया है नहीं किया, बिकॉज every service industry in one form and shape is facilitator to the other industry. ठीक है. सो उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग आता है, बट हाँ स्कीम बाय स्कीम हम इस पर बात कर सकते हैं कि उस स्कीम में हम बेनिफिट कैसे क्लेम कर सकते हैं अगर वो हमें डिनाई कर रहे हैं. तो that's obviously through all the means of laws which are and schemes which are available in the government on the government website. Right sir, I will मैं आपको परेशान करूँगा बेसिकली वो स्कीम भर के उसको डिकोड करके एनी टाइम. Rahul will discuss it later on also, no problem. Yeah, please. And definitely कोई problem अगर है तो हम उसे represent भी करेंगे. And definitely with this I would like to conclude today's session, and thank you to all participants for joining from Jammu, Ravi Gupta ji, and अभी विजय जी from Hyderabad, पटना जी से, पटना से भी अभी क्वेरी उन्होंने पूछी थी. सो एवरी पार्टी, मुदित जी पीलीभीत से हैं. सो मैनी पार्टिसिपेंट आर देयर फ्रॉम अदर सिटीज. सो इट इज द वेरी हेल्पफुल. सो इन वर्चुअल मोड वी कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम एंटायर कंट्री from the world. As let's meet tomorrow for discussion on the issue relating to other topic. I request Sunil Mangla sir to say final word of thanks. From Faridabad, Sunil Mangla sir. Thank you Sumit ji for giving me this opportunity. और आज के सेशन के बारे में क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया लाइवली सेशन था. और कितने क्वेश्चंस इस पे आने शुरू हो गए थे 10-15 मिनट के डेलिब्रेशन के बाद ही. तो इससे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड थे. और जैसा राहुल गुप्ता जी ने भी जो अपने क्वेश्चन किया है वो बहुत ही हमारा रेलिवेंट है. तो पंकज जी उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि वेदर दिस वी कैन क्लेम और नॉट. तो आज का जो सेशन रहा ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा. और मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले पंकज जी का कि आपने इतना बढ़िया तरीके से सेशन को आपने लोगों को दिया. और साथ में टीम कासा का धन्यवाद करूंगा जो अपने प्लेटफॉर्म पे वो इतना बढ़िया ये सारे सेमिनार्स करा रहे हैं. लास्ट 1 ईयर से 1.5 साल से हो गए तो देख रहा हूँ. उससे पहले भी फिजिकल जब पेंडेमिक नहीं था तो टीम कासा बहुत ही मेंबर्स की नॉलेज के लिए इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सारे सेमिनार्स प्रोवाइड कराए हैं. और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये वेबिनार वाला सेशन जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिससे कि लोगों का टाइम भी सेव हो रहा है और लोग घर बैठ के अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं. तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर आज टुडेज डेलिब्रेशन. थैंक यू पंकज जी और see you. Thank you to each participant, and I will share the presentation and recording by tomorrow on everyone's mail. So no need to worry, क्योंकि कई लोगों ने PPT और recording की बात मांगी है. Right. I will share with the help of Pankaj ji, and let's meet tomorrow in taxation session and day after tomorrow with Pankaj ji again on the very. Thank you so much everyone. And now closing the topic. It was you want to pleasure. say? Thank you. Thank you. Thank you.